میری عمر گزر گئی ایسے حادثوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، اور اب تو سر میں چاندی آ گئی جناب اسپیکر، مگر میں آج بڑے ادب سے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ ظلم و ستم برداشت کیا۔ عمران خان نیازی آج جتنا ظلم کرے گا اس کو برداشت کریں گے، لیکن کبھی ان کے آگے سر نہیں جھکائیں گے جناب اسپیکر۔ میں اس رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جناب اسپیکر، بڑے ہی بڑی انکساری کے ساتھ جی آپس میں بات چیت نہ کریں اور اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں، اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں۔ جی جی مجھے آپ کو یہ کہنا ہے کہ عمران خان نیازی کی بڑی بھول ہے۔ میں خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کی بڑی بھول ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیرہ دستیوں سے، ظلم اور زیادتی سے ہم پی ایم ایل این کی پارٹی کو دبا لیں گے، ان کو ڈرا لیں گے، خوف زدہ کر لیں گے۔ نواز شریف اور اس کے کنبے کو، ان کے افراد کو، اس کی بیٹی کو، اس کے بھتیجوں کو، اس کے بھائی کو جھکا لیں گے۔ جناب اسپیکر گواہ رہیے گا، خدا کی قسم یہ گردن کٹ جائے گی، اس کے آگے جھکے گی نہیں کبھی زندگی میں، کبھی اس کے آگے۔ ابھی چند دن پہلے آپ بھی یہاں تشریف فرما تھے، آپ بھی گواہ ہیں کہ جو مودی سرکار نے کشمیر میں جو ایک بدترین جو قدم اٹھایا ہے اور کشمیریوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے، پی ٹی آئی یا سلیکٹڈ وزیر اعظم نے تو کوئی ایفرٹ نہیں کی، پوری اپوزیشن نے، ہم نے خود فیصلہ کیا کہ یہ بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ بات ایک فرد واحد کی نہیں ہے، یہ بات پاکستان کی ہے، یہ بات کشمیر کی ہے، یہ بات آزادی کی ہے، یہ بات جنگ آزادی کی ہے، یہ بات پاکستان بننے کی ہے۔ ہم مل کر انشاءاللہ ہم کشمیری بھائیوں کا مل کر ایک آواز سے ہم بات کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس اپوزیشن کی بنائی ہوئی قومی یکجہتی کی اس فضا کو اپنے انتقام کی بھین چڑھا دیا، اور 24 گھنٹے نہیں گزرے جناب اسپیکر، 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ جس صفاقی کے ساتھ یہ گرفتاریاں کی گئیں، مریم نواز صاحبہ نیب میں باقاعدہ اپیئر ہوتی رہیں، سوال نامے ملے، اس کے جواب دیا، پھر جواب چاہیے تھا، اس کے لیے جناب اسپیکر انہوں نے ٹائم مانگا کہ میں آج اپنے والد کو جیل میں ملنے جا رہی ہوں، تو مجھے آج آپ نہ بلائیں، اگر بلانا ہے تو 3 بجے بلا لیں تاکہ میں فارغ ہو کر میں وہاں پر پہنچ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب ایک دن انتظار نہیں کر سکتا تھا؟ جناب اسپیکر میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ایک مرتبہ پھر یہ گرفتاری، میرے بھتیجے کی گرفتاری، شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری، خواجہ سعد رفیق کی گرفتاری، خواجہ سلمان رفیق کی گرفتاری، میاں نعمان کی گرفتاری، رانا ثناء اللہ کی گرفتاری، حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری، یہ پھر ثابت ہو گیا کہ نیب اور پی ٹی آئی آپس میں ان کا گٹ جوڑ ہے، اور یہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، ہم ان کو دیوار سے لگا دیں گے، بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم، بالکل۔ ان کا کیا قصور ہے؟ نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اندھیروں سے نکالا۔ نواز شریف کا کیا قصور ہے
जनाब स्पीकर, ये कसूर है कि सी पैक लाकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी कदम उठाया। ये कसूर है कि उन्होंने क्लिंटन की $5 अरब की उस तरगीब को ठुकराया और कहा कि नहीं मिस्टर क्लिंटन, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं $5 अरब मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने वतन का वकार चाहिए, इज्जत चाहिए। और आज हिंदुस्तान इसलिए आज पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख से नहीं देख सकता। ये जनाब स्पीकर, ये है वो हमारी गलतियां, हमारी कसूर। शाहिद खाकान अब्बासी का क्या कसूर है कि उसने जो गैस नामुमकिनात में से वो LNG गैस की पाइपलाइन जो कराची से लेकर और पूरे मैदानों से और पहाड़ों से गुजार कर पूरे पाकिस्तान को मुहैया की और गैस की कीमतें नहीं बढ़ने दी। नवाज शरीफ का ये कसूर है कि उसने इस मुल्क के अंदर लोगों को रोजगार दिलवाया और क्लाशनकोफ और ये मंशियात के बदले में लोगों को लैपटॉप दिए, इस मुल्क में लाखों रोजगार दिए। ये जनाब स्पीकर, ये कसूर है। मैं अगर यहां पर चाहूं तो इस मौके के ऊपर मैं आपको बाय फैक्ट्स गिनवा सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में खुदा की कसम इस मुल्क के कई 100 अरब रुपए बचाए गए। ये रात दिन रात झूठ, चोर और लुटेरों की बात करते हैं। लुटेरे और चोर और डाकू जहां पर हैं उनको जाके ये पकड़े और कौम को बताएं कि किस तरह BRT पेशावर में 100 अरब रुपए का डाका पड़ा है, 100 अरब रुपए का। और BRT पेशावर के ऊपर ये डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी स्टेटमेंट नहीं है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, इस ऐवान की स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि वहां पर अरबों रुपए की वहां पर करप्शन हुई है और इंफीरियर मटेरियल इस्तेमाल किया गया। और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो गवर्नर KPK को मिल चुकी, लेकिन उसके ऊपर कोई हिलजुल इसलिए नहीं है कि जनाब ये PTI और NAB का गठजोड़ है। वहां पर सबूत, रंगे हाथों सबूत के साथ पकड़े गए, कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर ये तकरीर इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी भतीजी कौम की बेटी मरीम नवाज और मेरा भतीजा गिरफ्तार हुआ है। मैं इसलिए यहां पर खड़ा हूं कि अगर यही वतीरा रहा, ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए है इनकी कश्मीर में जो इनकी फेल्ड पॉलिसी है, ये तवज्जो हटाने के लिए है। ये तवज्जो हटाने के लिए है। आप यकीन कर लें, कोई माने ना माने, पूरी दुनिया जानती है कि ये कश्मीर के अंदर उसका कश्मीर के मुस्तकबिल का सौदा किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बिल्कुल बिला खौफ तरदीद कहता हूं, उससे तवज्जो हटाने के लिए, ये तवज्जो हटाने के लिए कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज 4 साल में 30,000 से नीचे चला गया है। ये तवज्जो हटाने के लिए कि इस मुल्क की जो मईशत है वो डूब चुकी है। ये तवज्जो हटाने के लिए कि इस मुल्क के अंदर कारोबार बंद हो चुका है। तवज्जो हटाने के लिए कि ₹15 तक पहुंच गई है। तवज्जो हटाने के लिए कि यतीम और बेवा को दवाई नहीं मिलती, अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे डिप्टी स्पीकर, ये उस तरफ ये तवज्जो हटाने के लिए सारे इकदाम किए जा रहे हैं। वगरना अगर एहतसाब शफाफ होना होता तो फिर जितने हमारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं या पीपल्स पार्टी के किए गए हैं, जनाब स्पीकर, मैं किसी और पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो जिन्होंने करप्शन की है और सर से लेके पांव तक जो करप्शन में डूबे हुए हैं, उनको जनाब बादशाह बनाकर पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फिरते हैं, सलूट दिए जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, ये है वो चुपता हुआ सवाल कि आज पूरी कौम ये पूछने पर मजबूर है कि क्या वजह है कि सारे का सारा
करप्शन का इल्जाम और नजला मुस्लिम लीग नून के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, और बाकी सब दूध के धुले हुए हैं। मैं यहाँ पर कोई आई एम नॉट हियर टू स्पीक फॉर माई सेल्फ, मगर मैंने जनरलाइज अंदाज में बात की है। और मैं फिर कहता हूँ बिला खौफ तर्दीद कि खुदा की कसम नवाज शरीफ की क़यादत में 5 सालों में मेगा प्रोजेक्ट्स पे कई 100 अरब रुपए की बचत हुई और कौम का फायदा किया गया। उसका आज ये हमारा कसूर बन गया, हमारा ये कसूर बन गया कि हमने पावर प्रोजेक्ट्स में 120 अरब रुपए नेट बचत क्यों की। हमारा ये कसूर बन गया। जुमे का दिन है और कार्रवाई भी मैंने पूरी कर दी है, तो आप अपनी अगर बात मुख्तसर करें तो बात को मुख्तसर करें आप। आज जुमे का दिन है, नमाज का दिन है, और आज पूरी कार्रवाई करनी है। मैंने ईवान को चलाना है कार्रवाई के मुताबिक। स्पीकर, मुझे चंद मिनट बात करने दीजिएगा, बड़ा जरूरी है। अगर आप इजाजत देंगे तो फिर अपना ये बात आप मुख्तसर करें, मेरी आपसे गुजारिश है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये जो कल जो वाकया हुआ, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये वो कौन कम ज़र्फ था कि जिसने अपने बाप के सामने गिरफ्तारी पर मजबूर किया बेटी को, भतीजे को, चचा के ताया के सामने। नारेबाजी बिल्कुल नहीं करें, आराम से बैठें, आराम से नारेबाजी ना करें। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं। क्या कर रहे हैं? नारेबाजी नहीं करें, बिल्कुल आराम से बैठें, अपनी अपनी निशस्त पे जाके बैठें। आप दूसरों की निशस्त पे बैठे हुए हैं और ऊपर से नारेबाजी भी कर रहे हैं। अपनी निशस्त पे जाएं सारे, सबसे पहले सब अपनी अपनी निशस्त पे जाएं। अयाज सादिक साहब, आपकी जो निशस्त आपको अलाट हुई है उस पे जाएं। सबसे मेरी गुजारिश है कि सारे अपनी अपनी निशस्त पे जाएं। यहाँ पे भी जो आगे बैठे हुए हैं सब अपनी अपनी निशस्त पे जाके बैठे सब, चाहे वो अपोजिशन बेंचों पे हैं चाहे हुकूमत की बेंचों पे हैं, अपनी अपनी निशस्त पे जाके बैठे। अपनी निशस्त आपको अलाट हुई है, आप उस पे जाके बैठे। अपनी निशस्त आपको अलाट हुई है, उसी पे जाके बैठे। आप अपनी निशस्त पे जाके बैठे हैं। अपनी निशस्त पे जाके बैठे जी। आपने आगे एक लफ्ज स्पंज किया था सिलेक्टेड, वो आपके गले पड़ गया। मेरे गले कुछ नहीं पड़ा। ये जो है ये यहाँ पर इस ईवान का जो वजीर आज़म है वो मुंतखब है और मुंतखब वजीर आज़म है। यहाँ पर ये जो अपोजिशन लीडर बोल रहे हैं ये भी मुंतखब हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि बीआरटी की मैंने बात कर ली पेशावर की, और पेशावर के लोग हाथ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। बारिशों में जो उनका हशर हुआ है, हशर नशर हो गया पेशावर में, और वो बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन नैब की किसी खिड़की से बीआरटी की करप्शन की बू नहीं गुजरी। अगर गुजरी होती तो शायद नैब को एक्शन लेता। अगर गुजरी है तो वो जनाब मेरी भगत से, जनाब स्पीकर, वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। आप देखें केपीके का अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट 70 अरब रुपए खर्च हुए, 70 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, किसी ने कुछ नहीं पूछा और उन्होंने बंद कर दिया उस डिपार्टमेंट को। एनर्जी डिपार्टमेंट में केपीके के जो जाली भर्तियां हुई, कोई पूछने वाला नहीं। बिलियन ट्रीज के ऊपर कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, ये है वो फर्क, स्टार्क कंपैरिजन, जो कि इस एहतसाब को सरासर इंतकाम का नाम देता है। इसमें इंतकाम की बू आती है और ये जितना मर्जी इंतकाम ले लें, जितना मर्जी इंतकाम ले लें, जब तक जिसम में आखिरी खून का कतरा है, खुदा की कसम ये सारे जाले मुस्लिम लीग वाले खड़े होंगे, इनका मुकाबला करेंगे इनका। जनाब स्पीकर, मैंने नवाज शरीफ का कसूर बता दिया आपको, मैंने शाहिद खकान अब्बासी का कसूर गिनवा दिया आपको, मैंने मरियम नवाज का
कसूर गिनवा दिया आपको कि वो अवाम के लिए, बाप के लिए और पाकिस्तान के लिए, जमहूर के लिए निकली और वो कश्मीर के लिए निकली, और उस निहत्ती बच्ची को किस तरह इमरान खान न्याजी और नैब ने कल जाकर जेल में उनको, और अभी जनाब स्पीकर अभी खबर मिली है, जनाब स्पीकर तो जो फरमाएं, अभी खबर मिली है कि राना सनाउल्लाह के दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ के साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है उनका एक कसूर है कि उन्होंने कौम की खिदमत की और ईमानदारी से काम किया और नवाज शरीफ को बुरे वक्त में नहीं छोड़ा, और नवाज शरीफ के साथ एक आनी दीवार की तरह खड़े रहे। नवाज शरीफ का जो बाकी जो कुंबा है उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया, और मैं आपको यहाँ बता दूं जनाब स्पीकर जी, मुख्तसर करें जी। जी जनाब स्पीकर, काश इन्होंने, जो नवाज शरीफ ने जहां पर मुल्की तरक्की के अहदाफ को लेकर छोड़ा था, चाहे वो जीडीपी जो 6% को छू रही थी, अगर इन्होंने उसमें इजाफा किया होता तो आज हम इनको मुबारकबाद देते। अगर महंगाई में इन्होंने कमी की होती तो कौम इसकी तहसीन करती। अगर इन्होंने रोटी और रोजगार लोगों को दिया होता तो कौम दुआएं देती। जनाब स्पीकर, इन्होंने तमाम मामलात को तबाह बर्बाद कर दिया, और अब सिर्फ गिरफ्तार करो, जेलों में डालो, इनको मारो, और इससे काम नहीं चलेगा। अगर ये समझते हैं कि इससे मुल्क आगे बढ़ जाएगा, जनाब स्पीकर, इनकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान की माशी कश्ती इस वक्त भंवर में है, और भंवर में निकालने के लिए कौम की यूनिटी, कौम का इत्तेहाद चाहिए। ये कौम के इत्तेहाद को पारा कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि इसके जरिए हम इनकी गुलामी कर लेंगे। खुदा की कसम, गुलामी की जंजीरें तुमने माजी में भी तोड़ी हैं, आज भी तोड़ेंगे और कल भी तोड़ेंगे। मैं जनाब स्पीकर, आखिर में आप मुझे बार बार घूर के देख रहे हैं, मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूं, कि हम पाकिस्तान की तरफ उठने वाले वो तमाम हाथ, चाहे वो मोदी हो या कोई और हो, पूरी कौम उन हाथों को तोड़ डालेगी। पाकिस्तानी कौम, जनाब स्पीकर, कश्मीर से लेकर मुआशी तरक्की तक और जौहरी प्रोग्राम को अपने खून से उसका दफा करेगी। जनाब स्पीकर, हमें हर मामले में इन्होंने दीवार से लगा लिया और मजीद लगा लें, लेकिन आखिर में जनाब स्पीकर चीखें इनकी निकलेंगी, और चीखें इनकी निकलेंगी।